सबको जय मसीह की। Praise the जय Lord. ब्रदर। Praise the Lord. आइए आज का मीटिंग शुरू करेंगे। और लोना, यू कैन प्रे एंड स्टार्ट द मीटिंग। आप प्रार्थना करके आराधना शुरू कर सकते हो। Okay, Uncle. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for this time, O Father God, that you have given each one of us, O Father, to come into your presence, O Lord, and glorify and magnify your name, O Father God. Lord, we submit this time into your hand, O Father God. You lead us, O Lord, throughout, O Father God, throughout the Bible study, O Lord. Whatever songs would be taken, O Lord, help, O Lord, that it may only and only glorify your name, O Father God, and magnify your name because you are worthy of that, O Lord. And we thank you and we praise you. We give this time into your hands. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे यहोवा, बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे यहोवा, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध था मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। Yes, Lord, we thank you, Father, because you, Lord, are the Lords of Lords and the King of Kings, O Father God, and there is none like you, O Father. Thank you, O Lord, for that work that you did on that cross, O Lord, that finished work, O Lord, that you, O Father, were victorious over the devil, O Father God, that you were victorious over sin, O Father, and you have overcome the world, O Father God, which, O Lord, helps us, O Lord, and which
motivates us, oh Father God, to live in this life, oh Father God, that prepares us, oh Lord, knowing that our Savior, oh Lord, has risen, oh Father God, and He has overcome this world. So we have nothing to fear, oh Father God. Yes, Lord. And we thank you for that glorious work that was done on that cross. Thank you, oh Lord, that you have called us, oh Father God. You have called us to be your children and your disciples, oh Father. So you help us, oh Lord, in our each and every day, in our work, oh Lord, in our walk of life, oh Father God, that we may glorify you and praise you, oh Father, till our last breath, oh Father God, and give praise to your name, oh Lord, because you are worthy of it, oh Father God. And we witness, oh Lord, in this world, in this dark world, oh Lord, as you have kept us as the light and the salt, that we may glorify your name, oh Lord, through our life, oh Father God. Yes, Lord, and we thank you, Father. Enable us and help us, O Lord, each one of us, O Father, to live that life, O Lord, that would be pleasing to you, O Lord. मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है,
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Yes, Lord. The purpose of Father God of our life, O Lord, is, O Lord, to live for you, O Father God. And you are the reason, O Lord, for that we are living, O Father. It is only by your grace and your mercy, O Lord, that each and every day, O Lord, a new day is added to our life, O Father, to glorify your name, O Lord, to experience your goodness in our lives, O Father God, and to see, O Father God, that you are faithful, O Lord, in our lives, O Father God. Yes, Lord, we thank you, O Father, O Lord, for that grace of yours, O Lord, that is always, that is constant in our life, O Father. Yes, Lord. We, O Father, help that, O Lord, no matter what situation is there, O Lord, no matter what the world throws at us, O Father, but that we may always look up to that cross, O Father God. May look up to your sacrifice on that cross, O Father. Yes, Lord. Prepare us, O Father God. Help us, O Lord, to be a living testimony for you, O Father. We also pray, O Lord, that whatever, Father, was our past, O Lord, we thank you, Father, that for your name's sake, O Lord, that you have cleansed us, that you have cleansed the slate, O Father God, clean, O Father God. Yes, Lord. So help us, O Lord, to live a life, O Lord, remembering, O Father God, what you have done for us, O Lord. And you make us worthy, O Father, to be called as your disciples, O Lord. Yes, Father, Lord, we thank you, O Father, for this time of worship, O Lord. We thank you, O Lord, for you, O Lord, that you led us, O Lord, and that your name was glorified, O Father God. Yes, Lord, we give the time of word, O Lord, and each and everything into your hand, O Father. The word that will be shared today, O Father, help, O Lord, that it may penetrate in our hearts, O Father. You prepare us, O Father, for your word, O Father. Help us to understand, O Lord, what you are trying to speak to us, O Lord, and to walk on it, O Lord, and apply it in our daily lives, O Father God. And remember what is the purpose, O Lord, and what you expect from us being your children, O Father God. You speak to us, O Lord, and you transform us. We give this time into your hands. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आइए हम वचन में जाएंगे। हमारे पास समय कम है क्योंकि आज का मीटिंग थोड़ा जल्दी समाप्त करना होगा कुछ कारणों के लिए। तो हम वचन जाएंगे प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। हम पिछले हफ्ते हमने सीखा कि कैसे पतरस प्रचार करते वक्त उनके प्रचार के द्वारा हम क्या सीखते हैं। ओके, उनके प्रचार में, पतरस के प्रचार में पतरस कौन से मुद्दों को लेकर प्रचार कर रहे थे। ओके, कौन से मुद्दों को लेकर पतरस प्रचार किए, उन मुद्दों पर हमें ध्यान देना है। ओके, कई बार जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा, प्रचारक लोग ऐसे कई मुद्दों को लेकर प्रचार करते हैं जो वचन के आधार पर नहीं है। कई बार सांसारिक चीजों को, हम प्रचार में भी सांसारिक चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ओके, परमेश्वर के आत्मिक और पवित्र सेवकाई भी हम सांसारिक नजरिया से देखते हैं। ये प्रचार कई लोगों के प्रचार से स्पष्ट होता है। ओके, लेकिन इन प्रेरितों के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है, जो यीशु के साथ व्यक्तिगत रूप में समय बिताया है, शारीरिक तौर पे समय बिताया है उनके साथ सेवकाई में। तो इन प्रेरितों से हमें बहुत सीखना है। तो मैंने ये कहा था पिछले बार कि पतरस अपने प्रचार में किसको संबोधित कर रहा है, उनका प्रचार, ये वो अच्छी तरह से जानता था। ओके, यहूदियों को संबोधित किया क्योंकि वहां पर गैर यहूदी लोग भी थे। दूसरा हमने ये देखा कि पतरस अपने आवाज को उठाकर ऊंचे स्वर से प्रचार किया। ओके,
और उन लोगों से ऐसा कहा, मेरे शब्दों को ध्यान लगाकर सुन। तो पतरस लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कई प्रचारक लोग ऐसे रहते हैं कि अपनी ही धुन में प्रचार करते जाते हैं। जो पॉइंट्स तैयार किया है वो पॉइंट्स मुझे पूरा करना है, वो है उनका लक्ष्य। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान होना चाहिए कि सुनने वाले किस प्रकार से बैठे हैं, क्या ध्यान दे रहे कि नहीं। ओके, नहीं तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। हमें उनका ध्यान खींचना है। ओके, वचन बांटने के कोई भी समय पर यदि मेरा आवाज कट रहा है, इंटरनेट स्लो है, ऐसा कुछ हो रहा है, आपको महसूस कर रहा है, तो आप बताइए मुझे प्लीज। मैसेज डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कृपया करके मुझे बताइए आप लोग। ओके, और कौन सा समय था ये? पतरस ने स्पष्ट कहा है 15वां वाक्य में, 15वां वाक्य में, कि सुबह का तीसरा पहर, मतलब 9 बजे, सुबह 9 बजे को तीसरा पहर कहा जाता है। The third hour is 9 a.m. in the morning. So we know the timing when the power of the Holy Spirit came upon them. Okay, it was early in the morning, 9 o'clock. Okay, ये ऐसा एक समय है जब अक्सर लोग व्यस्त रहते हैं, अपने अपने कामों में, घर के कामों में व्यस्त रहते हैं, ऑफिस जाने में व्यस्त रहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कहता है कि शिष्य लोग, प्रेरित लोग, ओके, साधारण तौर पे दुनिया वाले जब व्यस्त रहते हैं सांसारिक चीजों में, वे प्रार्थना में व्यस्त थे। प्राथमिकता, प्रेरितों ने प्राथमिकता सही दिया प्रार्थना के लिए। ओके, हम किन चीजों के लिए प्राथमिकता है, ये हमें अपने आप को जांचना है। ओके, और फिर पतरस ये भी जानता था कि जो घटना हो रहा है उनके आंखों के सामने, कौन सा घटना? पवित्र आत्मा का आगमन पहली बार संसार में। ओके, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जैसा परमेश्वर ने वादा किया था वो पूरा हो रहा है। ओके, और ये सामर्थ्य जब उतर आया तब पतरस ने स्मरण किया कि योएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में, ओके, योएल भविष्यवक्ता ने कहा था कि अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है। ओके, तो उससे हमें पता चलता है कि हम क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, ओके, हमें पता चलना चाहिए परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है उन घटनाओं के द्वारा। Is there something written in the word of God about what is happening in our life? Is God speaking to us through the incidents in our life? हमारे जीवन के घटनाओं के द्वारा, हमारे उतार और चढ़ाव, हमारे कष्ट समय में क्या परमेश्वर कुछ बात कर रहा है? क्या उनके वचन में हमारे जीवन के संबंधित कुछ है? ये हमें पता रहना चाहिए। कैसे पता चलेगा? यदि हम वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ओके, किसी ने कहा कि मेरा आवाज कट रहा है। क्या सभी को ऐसा महसूस हो रहा है? क्या मेरा आवाज कट रहा है? नहीं ब्रदर, डिस्टर्बेंस अंकल। सॉरी, A little disturbance when you are speaking. Slight disturbance? Yes. Okay, okay. Okay, अभी आगे भी यदि डिस्टरबेंस होगा तो प्लीज मुझे बताइए। मेरा आपको पूछने का आप राह मत देखिए। प्लीज लेट मी नो द फीडबैक। ओके, सो पतरस अच्छी तरह से जानता था परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार हो रहा है। हमारे जीवन में यदि कुछ हो रहा है
कई बार मसीह लोग चिंता में चले जाते हैं, घबराहट में चले जाते हैं, और बहुत सारे प्रश्न मसीह लोगों के मन में होता है, ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हम क्यों नहीं जानते कि वचन में हमारे जीवन के संबंधित सभी चीजें लिखा है। यदि हम वचन पढ़ते रहेंगे तो उचित समय पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ये जिम्मेदारी है उन वचनों को जो हमने पढ़ा है वो याद दिलाना। It's the responsibility of the Holy Spirit to remind us of all that Jesus has taught us. And only if we sit at his feet, he will teach us. And if he has taught us, we will be reminded by the Holy Spirit. So the problem is that we don't sit at his feet. We don't read the word. We don't study the word. हम परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं, अभ्यास नहीं करते व्यक्तिगत रूप में। ओके, बाइबल स्टडी अटेंड करना अच्छी बात है। ओके, कलीसिया में जाना, वचन सुनना कलीसिया में रविवार के दिन अच्छी बात है। लेकिन इन सब से भी बढ़कर हम व्यक्तिगत रूप से वचन अभ्यास करना, परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ ओके उन शब्दों को सीधा सुनना, ये भी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। ओके, तब जाकर हमारे मुश्किल घड़ियों में हमारे अंदर एक सांत्वना होगा, एक शांति होगा, एक आश्वासन होगा। there will be a rest in us at the time of trials and temptations, and that rest comes when we know the word of God. We will have clarity of what is happening. We will not wonder what is this. Okay, इस प्रेरितों का पुस्तक का 2 अध्याय 12वां वाक्य में गैर यहूदी लोग, जो अन्य जाति के देश से आए हुए लोग, वे लोग आश्चर्य थे, चकित थे। वे लोग सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। That's what they asked there. Whatever could this mean? उन लोगों ने, हिंदी बाइबल में लिखा है, उन लोगों ने क्या प्रश्न पूछा, ये क्या हो रहा है। That's what it says ना ब्रदर इन हिंदी बाइबल, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। तो अन्य जाति के लोग जिनको वचन नहीं पता है, जीवन के अलग अलग घटनाओं में उनका जबान में ये प्रश्न होगा, उनके मन में ये प्रश्न होगा, ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारे मन में और जबान में ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है। क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते, हम भी उन अन्य जातियों की तरह कई बार प्रश्न पूछते, ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, बी एट रेस्ट, बी एट रेस्ट। अय्यूब के जीवन में सब तितर बितर हुआ, सब कुछ नष्ट हुआ, फिर भी अय्यूब अनजान नहीं था, अय्यूब स्पष्ट जानता था। इसलिए अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख जैसे बात करती है। जब हमने भलाई परमेश्वर से पाया है तो क्या हम बुरे चीजें या ऐसे कुछ कहा, should we not expect troubles, or should we not expect ups and downs. Okay, so Job was not shaken. To some extent he was not shaken. Okay, हमारा जो नींव है वो मजबूत रहे। तो पतरस यहाँ पर प्रेरितों का 2 अध्याय में अपने प्रचार में योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने क्या बात किया था वो स्मरण किया और लोगों को बताया कि ये वो हो रहा है जो परमेश्वर ने पहले से ही कहा था। क्या कहा था? कि हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे, हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं, काम वाली, ओके, वे उनके ऊपर मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ओके, और मैं
स्वर्ग से अद्भुत कार्यों को करूंगा, ये एक चिन्ह के रूप पर होगा। ओके, सो ये सब परमेश्वर ने कहा, और इन अंतिम दिनों में जब परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य करेंगे, तब जो कोई मेरे नाम को पुकारेगा उनका क्या होगा? उद्धार होगा। 21 वाक्य पढ़िए, प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 21 वाक्य। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ओके, आप मुझे बताओ, जो प्रभु को नहीं जानता है वो प्रभु का नाम कैसे लेगा? यदि हम उनको प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे तो उस वचन में हमारा जिम्मेदारी छिपा हुआ है, वहां पर वो हमें समझना है। वे प्रभु के नाम कैसे लेंगे यदि हम नहीं बताएंगे? तो वे कैसे जानेंगे प्रभु को? सो देयर इज अ मैसेज देयर, लेट अस गो एंड शेयर द गॉस्पेल। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। पतरस लोगों से कहता है, हे इज़राइल के पुरुषों, 22 वाक्य पढ़िए। ए इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। एक मिनट, इन 2 वचनों को हम केवल 22 और 23 वाक्य को आज देखेंगे। ओके, और इन 2 वचनों को बहुत धीरे से हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान देकर हम उन शब्दों पर ध्यान देकर पढ़ेंगे। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। ये बातें सुनो। हे विश्वासियों, परमेश्वर कहता है, उनका वचन कहता है, ये बातें सुनो, ये हमारे लिए है। आगे, यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नाजरी एक मनुष्य था। आगे, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों। तो यीशु मसीह परमेश्वर से था, उसका प्रमाण, उसका सबूत क्या है? आगे, सामर्थ्य काम, सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। चिन्ह से प्रकट है, सामर्थ्य कार्य, आश्चर्य कार्य और चिन्हों से प्रकट है। ओके, ऐसे कई लोग हैं जो दावा करते हैं, ओके, कि मैं परमेश्वर से भेजा हुआ हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। ओके, यदि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर से भेजा हुआ है, तो उसका प्रमाण क्या है? ओके, सबसे प्राथमिक, तुम उनको कैसे जानोगे? उनके फलों से जानोगे। यीशु क्या कहता है? सुसमाचार के पुस्तकों में हिंदी में कैसा लिखा है वो वाक्य? You will know them by their fruits. आप उनको उनके फल के द्वारा जानोगे। हाँ, तो यीशु ने ये स्पष्ट कहा है कि हम लोगों को उनके सामर्थ्य, जो पवित्र आत्मा के वरदानों से नहीं, उनके फलों से जानोगे। ओके, और दूसरा, यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर से है, उसका प्रमाण, उसका सबूत आश्चर्य कार्य और चिन्ह चमत्कार से वो स्थापित किया था। तो आश्चर्य कार्य भी है। ओके, पौलुस कुरिन्थ कलीसिया को जब खत लिखता है, पौलुस उनसे क्या कहता है? 1 कुरिन्थ उसका 2 अध्याय और 4 वाक्य पढ़िए। 1 कुरिन्थ 2 अध्याय उसका 4 वाक्य, 4। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हाँ,
तो पौलुस कुरिन्थ कलीसिया से खत लिखते वक्त शुरुआत में कहता है, मैं जब बहुत साल पहले तुम्हारे पास सुसमाचार लेकर आया और तुम्हारे बीच में प्रचार किया, मेरा प्रचार लुभाने वाले बातों से नहीं था, परंतु कैसा था? परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। The proof is that it was filled with the Spirit and of power, the power of God. So power of God is not just in words. It should be seen through the lives that are being transformed. लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है, वो एक प्रमाण है कि वचन सामर्थी था। ओके, एक व्यक्ति माइक लेकर चिल्लाकर यदि प्रचार करता है, ओके, स्टेज में ऊपर से नीचे इधर उधर जाता है, बहुत कुछ ऐसे एक्टिविटीज करता है, कार्य करके, उसमें ये एक प्रमाण नहीं है कि वो सामर्थी है। आवाज के वॉल्यूम में नहीं है सामर्थ, ओके, परंतु परमेश्वर का सामर्थ का प्रमाण प्रकट कैसे होता है? लोगों का जीवन परिवर्तन होना चाहिए। ओके, और सामर्थी कार्य परमेश्वर जो करता है, सामर्थी कार्य। ओके, सो पत्रस उनके प्रचार में यीशु मसीह किस प्रकार से आया वो कह रहा था। और 23 वाक्य में, प्रेरितों का दूसरा अध्याय, उसका 23 वाक्य पौलुस क्या कहता है? उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। ओके, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, जब गिरफ्तार किया गया उनको, जब पकड़वाया गया था, जैसा यहूदा इस्करियोत ने यीशु के चेहरे पर चुम्बन देकर उनको पकड़वाया। ओके, तो ये क्या है? यहां पर वचन में स्पष्ट हो रहा है, यीशु पकड़वाया गया कैसे? पढ़िए वो शब्द, यीशु 23 हाँ। फ्रॉम बिगिनिंग। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। बस बस, परमेश्वर का योजना था कि वो पकड़वाया जाए। ओके, जब यहूदा ने यीशु के चेहरे पर चुम्बन दिया, ये परमेश्वर का योजना था। ओके, योजना, और व्हाट इज द वर्ड यूज देयर? पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब पहले से ही परमेश्वर जानता था। सो आई वांट टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट फोर नॉलेज, परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के बारे में। पिछले 2 हफ्ते से हम रविवार के दिन पास्टर जेकब के द्वारा सुन रहे पूर्व ज्ञान के बारे में, द फोर नॉलेज ऑफ गॉड, द प्री डेस्टिनेशन ऑफ गॉड। पहले से ही परमेश्वर ने तय किया है। ओके, और परमेश्वर का पहले से ही ज्ञान जो परमेश्वर जानता है, पहले से, परमेश्वर का पहले से ही जानना और पहले से ही तय करना, ये 2 विषय है, 2 अलग विषय है। द फोर नॉलेज ऑफ गॉड एंड द प्री डेस्टिनेशन ऑफ गॉड, दीज आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, मुझे नहीं पता, जब इन विषयों के बारे में जब आप प्रचार के द्वारा सुनते हो, आपके मन में कुछ प्रश्न उभर आता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आता है, कई मसीहों को इन विषयों के बारे में स्पष्ट पता नहीं है, और प्रश्न आता है तो भी हम पूछेंगे नहीं। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि जो भी प्रचार कर रहे हैं,
उस वक्त प्रचार करते वक्त आप उस व्यक्ति को स्टेज में रोककर पूछ नहीं सकते, लेकिन आपका प्रश्न है तो आप व्यक्तिगत रूप में उस व्यक्ति को मिलकर कॉल करके पूछना चाहिए, कोई भी प्रश्न हो तो। यदि मैंने कुछ वचन के द्वारा बांटा है, आपको प्रश्न है, कृपया करके पूछिए, पूछिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ओके, और विशेष करके ऐसे ऐसे जो विषयों को लेकर, प्री डेस्टिनेशन, द फोर नॉलेज, इट्स अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। ओके, तो मेरे जवानी के समय पर मैं बहुत प्रश्न पूछता था, उस समय के पास्टरों को मैं बहुत तंग करता था। ओके, प्रचार में जो भी बातें किया उसके बाद मैं प्रश्न पूछता था, ऐसा क्यों, आपने जो कहा मुझे नहीं लगता है वो वचन के अनुसार है, मैं बोलता था, या अगर सही है कुछ प्रश्न है तो मैं पूछता था। ओके, आप जितना पूछेंगे उतना आपको स्पष्ट होगा उन विषयों के बारे में। ओके, सो यहाँ पर पतरस कहता है, यीशु का गिरफ्तार होना, पकड़वाए जाना, क्रूस पर मारे जाना, ये परमेश्वर का योजना था, पुनर्ज्ञान था। It was a foreknowledge of God. God knew it. Okay, तो कुछ प्रचारक लोग जैसे कहते हैं कि जो परमेश्वर का जो प्री डेस्टिनेशन, व्हाट डू यू कॉल फॉर प्री डेस्टिनेशन इन हिंदी? पूर्व निर्धारित। पूर्व निर्धारित, परमेश्वर ने निर्धार किया है, परमेश्वर ने ये तय किया है क्या होने वाला है। तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, तो हम सब केवल एक पुतला जैसा है। ओके, तो उसमें मैं थोड़ा समझ लाना चाहता हूं। परमेश्वर ने तय किया है और परमेश्वर को पूर्व ज्ञान है, पहले से ही पता है। ये दो विषय का मतलब ये नहीं है कि हम एक पुतला है, हमारा परमेश्वर का योजना में हमारा कोई भाग नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, कोई प्रचारक लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर पहले से ही तय किया है, हम कौन है उनको प्रश्न पूछने वाले। नहीं, उन्होंने तय किया है, उसमें हमारा स्वतंत्र इच्छा उन्होंने छीना नहीं है। जिस परमेश्वर ने तय किया है और जिस परमेश्वर पहले से ही जानता है हमारे जीवन में क्या होने वाला है, वही परमेश्वर हमें एक स्वतंत्र इच्छा भी दिया है आरंभ से ही, और वो स्वतंत्र इच्छा आज भी है। तो फिर इसका मतलब क्या है जब वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहले से ही तय किया है? इसका मतलब क्या है जब वचन कहता है कि परमेश्वर को पहले से ही पता है मेरे जीवन में क्या होने वाला है? वेरी सिंपल। ओके, दो ये दिस टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये विषय बहुत ही कोमल और निर्मल, मतलब बहुत ही नाजुक है। ओके, लेकिन बहुत ही मैं आसान तरीके से एक पॉइंट जिसका फायदा मुझे हुआ बहुत पहले से ही, जब मैं इन विषयों को लेकर बहुत प्रश्न पूछ रहा था, एक आसान एक पॉइंट मुझे इस विषय को समझने में और आसान करने में बहुत फायदा लाया। वो ये है, परमेश्वर को जब पहले से ही पता है, एक उदाहरण मैं देता हूं। आज रात को 10 बजे को मैं जब शैतान मेरा परीक्षा करेगा, when I will fall in temptation, मैं उस परीक्षा में गिर जाऊंगा और मैं पाप करूंगा, ये परमेश्वर को पहले से ही पता है, और उस पाप के कारण परमेश्वर मुझे कुछ दंड देगा, ये भी परमेश्वर ने पहले से ही तय किया है। तो उनको पहले से ही पता है और उनका पहले से ही निर्धार करना, तय करना, प्री डेस्टिनेशन एंड द फोर नॉलेज। लेकिन परमेश्वर को जो पहले से ही पता है कि 10 बजे को मैं करने वाला हूं,
जो गलत निर्णय लेने वाला हूं, जो पाप करने वाला हूं, क्या पता है परमेश्वर को? परमेश्वर को यह पता है कि मैं 10 बजे को जो पाप करने वाला हूं, मेरे स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करके मैं वो करने वाला हूं, ऐसा पता है। मैं पुतला बनकर, परमेश्वर मुझे नहीं करवा रहा है। तो जब जुदास इस्करियत ने यीशु को चुम्बन देकर उनको बिकवा दिया, बेच दिया, ओके, परमेश्वर का ये फोर नॉलेज था, पहले से ही पता था कि यहूदा इस्करियत अपना स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करके ये करने वाला है। तो हम पुतले नहीं है, हम पुतला नहीं है, वी आर नॉट पपेट्स, ओके। गॉड, it's God's foreknowledge that we will use our free will and do it. So God is not interfering in our free will. Let that be very clear. He knows the end from the beginning. परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानता है, और अंत में या कोई भी भविष्य में, भविष्य के समय पर हम अपने अपने स्वतंत्र इच्छाओं को इस्तेमाल करके कौन सा सही निर्णय लेने वाला है, कौन सा गलत निर्णय लेने वाला है, ये परमेश्वर पहले से ही उनको पता है। तो आपका अगला प्रश्न ये होगा कि यदि परमेश्वर को पता है कि मैं वो गलत निर्णय लेने वाला हूं, तो परमेश्वर मुझे रोक क्यों नहीं रहा है? वो मुझसे प्रेम करता है तो क्यों नहीं रोक रहा है? बहुत लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ओके। यदि परमेश्वर, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रोकना चाहिए वो गलत निर्णय लेने के लिए, उसका मतलब आपका इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपके स्वतंत्र इच्छा पर दखल अंदाज करना चाहिए। Just because your free will choice is going to be a wrong choice, a sinful thing, you expect God to stop you. And if God stops you for your wrong choice, it is the justice of God says that he has to stop you for your good choice also then. आप समझे? यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपके स्वतंत्र इच्छा को, जिससे आप गलत निर्णय लेने वाले हो, जिससे आप तकलीफ में गिरने वाले हो, वो आप परमेश्वर रोकना चाहिए, तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यदि उसमें रोकना चाहिए तो परमेश्वर आपके अच्छे निर्णयों को भी रोकना चाहिए। फिर स्वतंत्र इच्छा दोनों के लिए है, अच्छे और बुरे निर्णय दोनों के लिए है। So the point is, God will not interfere in your free will choice. And God knows beforehand that you will use your free will to make that good or wrong choice. परमेश्वर पहले से ही जानता है, परमेश्वर पहले से ही निर्धारित किया है, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर। यदि कुछ भी प्रश्न है आप चैट के द्वारा आप डाल सकते हो, ओके। और परमेश्वर का पुनर्ज्ञान के बारे में, ओके, रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 29 वाक्य, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29 हम पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 29 वाक्य 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उस पुत्र के स्वरूप में हो। बस, परमेश्वर पहले से ही ठहराना, द इंग्लिश वर्ड इज प्रीडेस्टिनेशन। लेकिन प्रीडेस्टिनेशन के पहले पुनर्ज्ञान का शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है। फॉर whom he foreknew he also predestined, ओके। तो परमेश्वर का पुनर्निर्धार करना, परमेश्वर पहले से ही तय करना कि एक व्यक्ति का अंत क्या होगा, ओके। लेकिन पहले से ही तय करना, उसके पहले एक विषय है, पहले से ही जानना। ये दो अलग विषय है, फोर नॉलेज एंड प्रीडेस्टिनेशन। सो बिफोर ही destined somebody, he has the foreknowledge that this person is going to use his free will and make a choice. And based on that free will choice,
he is predestining. तो जब हमने सुना कि याकूब और ईसाऊ जन्म लेने के पहले ही परमेश्वर ने तय किया था याकूब क्या होगा, हिंदी में क्या लिखा था? What did you say? About Esau and Jacob, the book of Galatians. Esau I'll hate, but yeah, but Jacob I have chosen. I'll hate. याकूब को प्रिय जाना, एसाव को अप्रिय जाना. Yes. याकूब से प्रेम किया. Yeah, याकूब से प्रेम किया और ईसाऊ को अप्रिय जाना. ये परमेश्वर ने पुनर्निर्धारित किया, पहले ही तय किया, जन्म के पहले. तो ये थोड़ा अन्याय, सुनने में आपको अन्याय लगेगा, लेकिन उसका, अगर आपको अन्याय लग रहा है उसका मतलब आप सही तरीके से समझे नहीं, इसीलिए. तो इस प्रकार से आपको समझना है इस वाक्य को कि जब परमेश्वर ने पुनर्निर्धार किया, पहले ही तय किया कि याकूब को वो प्रिय जानेगा और ईसाऊ को अप्रिय जानेगा, वो क्यों पहले से ही निर्धारित किया? क्योंकि पहले से ही परमेश्वर जानता था. He already, his foreknowledge. So foreknowledge comes before predestination. Okay? तो परमेश्वर पहले से ही जानता था कि याकूब अपने पाप में जीने के बावजूद, सब कुछ गलत करने के बावजूद, अंत में वो मन फिराकर परमेश्वर के पास आएगा. तो याकूब का स्वतंत्र इच्छा से याकूब वो चुनाव किया है, जो हम उत्पत्ति का पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को, उनके स्वर्गदूत को, उनके दूत को वो नहीं छोड़ा. जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा. ओके, परमेश्वर ने उसका नाम को याकूब से इज़राइल रखा. ओके, सो गॉड चेंज्ड हिज नेम देयर बिकॉज ऑफ the passion that he had. Okay, the zeal that he had for God, that he realized the wrongs that he has done, everything he did wrong in his life, Jacob, and then he made a choice of not leaving God. Okay, so this God knew before his birth. That's what it says. So the choice of Jacob is not taken away, the free will choice. और ईसाऊ अपना स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा खीर के लिए अपना जन्म सिद्ध अधिकार को बेच दिया, अपना स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल करके. ये भी परमेश्वर पहले से ही जानता था, क्योंकि वो जानता था इसीलिए पुनर्निर्धारित किया. Because he foreknew about this, that Jacob and Esau or anyone in this world is going to use their free will and make a certain choice, he has predestined. Okay, so the point that I'm trying to make is we are not puppets. Okay, God is not unfair. It is not unjust. We are making, so our choice has a contribution. Okay, हमारे निर्णय के अनुसार परमेश्वर प्रीडिस्टाइन करता है, पुनर्निर्धारित करता है, पहले से ही तय करता है क्या होगा. ओके, अब मैं और एक उदाहरण आपको, चौंकाने वाली उदाहरण में देता हूं. ओके, परमेश्वर कुछ चीजें पहले से ही तय किया हुआ परमेश्वर ने बदला भी है. ओके, उदाहरण के रूप में योना के पुस्तक, योना का पुस्तक में परमेश्वर भविष्यवक्ता योना को भेजता है निनवे के विरुद्ध प्रचार करने के लिए. 40 दिन बाकी है और परमेश्वर नाश करने वाला है निनवे को. That was his preaching. Okay, योना का पुस्तक में आएंगे. योना उसका 3रा अध्याय और 4था वाक्य. जोना चैप्टर 3 वर्स 4. योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया. अब से 40 दिन के बीतने पर
निनवे उलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन के बीतने के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। ये परमेश्वर ने योना को ये संदेश देने के लिए कहा था। ओके, तो ये परमेश्वर ने तय किया था कि निनवे को उलट देगा। ओके, अब योना के प्रचार के कारण निनवे मन फिराया। निनवे के लोग अपना स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए एक सही चुनाव किया। ओके, जिस कारण परमेश्वर अपना निर्णय बदला। 10वां वाक्य पढ़िए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। यस, तो परमेश्वर अपने निर्णयों को बदलता है हमारे निर्णय के अनुसार। हम यदि सही निर्णय, तो इट इज वेरी क्लियर, द फ्री विल चॉइस इज वेरी क्लियर। व्हाट आई वांट टू मेक इट क्लियर हियर इज वी आर नॉट puppets. God doesn't consider us as puppets. So his predestination is not excluding our free will. It is including our free will choice. Because we make a choice, God knows it beforehand and he predestines us. But if we turn away from our sin and we make a right choice, God changes his decision. And even that God knows. Even that God knows that we are going to change and make the right choice. Okay, so I hope to some extent it is clear. परमेश्वर का पुनर्योजना, पुनर्निर्धारित करना और परमेश्वर का पुनर्ज्ञान, his foreknowledge and his predestination. If you understand from that point of view, it will always be slightly simple to interpret the text. But there are many things which is very difficult to understand. Okay, so we don't need to break our head, as Pastor Jacob said rightly. It's good not to break our head beyond a certain point, because we have our limitation. The human mind, मनुष्य का विचार और समझ का एक सीमा है। परमेश्वर के इटर्निटी, व्हाट डू यू कॉल फॉर इटर्निटी? अनंत काल। हाँ, परमेश्वर के अनंत काल के चीजों के बारे में, जो समय के समय में सीमित नहीं है। ओके, हम सब इस संसार में समय में सीमित है। we are bound in time zone. Okay, but God is beyond time. परमेश्वर समय के पार है और अनंत काल से अनंत काल में है परमेश्वर। हम अनंत काल में अभी तक प्रवेश नहीं किए। ओके, इसीलिए क्योंकि हम सीमित तरीके से हमारा सृष्टि जो है, ओके, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है एक सीमित, एक सीमा में। ओके, तो उस सीमा में ही हमारा सोच भी चल सकता है। उसके बाहर समय के उस पार वाले चीजें, अनंत काल वाले चीजें, सर्टेन टॉपिक्स, कुछ विषय मुश्किल होगा कुछ हद के बाद समझने के लिए। वो हमें ऐसे ही छोड़ना है। We will understand completely when God will transform us. Amen. So लौट कर आएंगे प्रेरितों का पुस्तक, उसका 2 अध्याय में जो हमने पढ़ा था, मैं समाप्त करना चाहता हूं। तो पतरस वहां पर कहता है कि यीशु मसीह गिरफ्तार हुए, वो पकड़वाए गए परमेश्वर का पुनर्ज्ञान के अनुसार। परमेश्वर जानता था पहले से। आपके और मेरे जीवन में आज क्या हो रहा है, परमेश्वर पहले से ही जानता था ये होने वाला है। ओके, क्या कोई व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है? परमेश्वर जानता था, पहले से ही जानता है कि वो व्यक्ति तकलीफ देने वाला है। ओके, तो जाहिर सा प्रश्न है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को रोका क्यों नहीं? मुझे तकलीफ से होकर जाने के लिए
क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया? ओके, बहुत कुछ कठिन प्रश्न से हम उलझते हैं। ओके, परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर यदि उस व्यक्ति को जो आपके जीवन में तकलीफ ला रहा है उसको रोकना चाहिए, आप चाहते हो, उसका मतलब आप क्या मांग रहे हो परमेश्वर से? कि उस व्यक्ति जो उनका स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करते हुए गलत चुनाव करके आपको तकलीफ दे रहा है, उसका स्वतंत्र इच्छा पर परमेश्वर रोक डालना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? So the world is very complex and God is perfect. He is handling it perfectly. परमेश्वर किसी का भी स्वतंत्र इच्छा पर रोक नहीं डालता है, परंतु क्यों ना हम इस प्रकार से देखें, वो व्यक्ति जो हमारे जीवन में तकलीफ लाता है, हम इस परिस्थिति को एक मौका जैसा लेंगे परमेश्वर के सुगंध रूपी स्वभाव को प्रकट करने के लिए। Let us take that as a challenge. God, give us grace that I will display your character in this difficult moment. That is why Jesus taught in the Gospels that those who hit you on one cheek, give them your second cheek also. Those who take away your one cloak, okay, give them your second also. Okay? परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में वो सुगंध रूपी स्वभाव उभर आने के लिए जो हमारे शक्ति से संभव नहीं है, परमेश्वर ने हमें एक शक्ति दिया है, वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। उनका अनुग्रह काफी है। इन सब प्रश्नों को जब हम पूछते हैं, क्यों ना हम उनके अनुग्रह पर भरोसा रखें, उनका सामर्थ्य पर हम विश्वास करें। ओके, उनका सामर्थ्य को पहचाने कि उनका सामर्थ्य एक व्यक्ति के गलत कार्य हमारे जीवन में जो कर रहा है या शैतान जो गलत कर रहा है उससे भी सामर्थ्य है। उनका अनुग्रह और उनका सामर्थ्य जो हमारे अच्छेपन को इस व्यक्ति के बुराई को बदलने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। ओके, दैट इज गॉड्स पावर। तो यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के लिए परमेश्वर ने युदास को नहीं रोका, रोमी अधिकारियों को नहीं रोका, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी नहीं रोका, जो इतना पीड़ा सहने के बाद भी, पकड़वाए जाने के बाद भी, लोगों के थूक खाने लेने के बाद भी, ओके, चाबुक से मार खाने के बाद भी, पूरा रक्त बहाने के बाद भी, अंतिम घड़ी में परमेश्वर से कहा, अपना स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करके पर यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ओके, उसी जगह पर यीशु मसीह अपना स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करके सवाल कर सकता था, प्रभु तू इनके ऊपर आंधी लेकर आ, तूफान लेकर आ, इनको खत्म कर। परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं प्रार्थना किया। So our choice matters. God's foreknowledge and predestination is complementing our choice, our free will choice. It is going hand in hand with our free will choice. Okay, let's make the right choice and let's create history for the glory of God. परमेश्वर के महिमा के लिए हम इतिहास बनाएं। आज का वर्तमान कल इतिहास बनने वाला है। हम आज कैसा स्वभाव दर्शन करने वाले, हम कैसे प्रकट करने वाले, वो कल लोग याद रखेंगे। परमेश्वर के महिमा के लिए ये चर्चा होगा भविष्य में। क्यों ना हम एक let us leave back a good legacy. What do you call for legacy? विरासत। एक विरासत, एक अच्छा विरासत हम छोड़कर जाए। ओके, लोग हमें अच्छे चीज के लिए याद रखे, ना कि
हमारे बुरे चीजों के लिए। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। कन्नन ब्रदर, आप है तो आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ ब्रदर। यस यस ब्रदर, प्रार्थना कीजिए। थैंक यू। पिता प्रभु, आपके प्रभु पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु। पिता प्रभु, आज के वचन में हमने जो सीख लिए वो सीख के अनुसार हम अपने कार्य को बढ़ाए पिता प्रभु। पिता प्रभु, आपके इस वचन के अनुसार हम अच्छे अच्छे सीखों के साथ अपने कार्य को आगे रखे पिता प्रभु। पिता प्रभु, हर एक ब्रदर सिस्टर जो भी इस वचन को सुनते हैं वो अपने जीवन में अच्छे कार्य में, अच्छे सुगंधित कार्य में उनको बढ़ाए पिता प्रभु। पिता प्रभु, जो भी आज के इस वचन के अनुसार जो भी कार्य हुए अच्छे, सभी के जीवन में अंधकार से उजाला लाए पिता प्रभु। पिता प्रभु, आपके इस सुखद इस समय के लिए हर एक के लिए जीवन में सुखदायक जीवन होए पिता प्रभु। पिता प्रभु, जो भी कष्ट होवे सभी को आशीष करे पिता प्रभु। पिता प्रभु, जो भी कठिनाई से जो जी रहे हैं उनको आप आपके वचनों से उनको संगाई मिले पिता प्रभु। पिता प्रभु, सभी को आपके वचन को निर्दय करके चले पिता प्रभु। पिता प्रभु, आज के इस वचन के समय में सभी को चंगाई मिले पिता प्रभु। पिता प्रभु, इस सीख के लिए हमें ब्रदर जॉर्ज को जो भी कठिनाई है पिता प्रभु वो चंगाई से भरे पिता प्रभु। पिता प्रभु, आज समय पिता प्रभु, आज जो भी समय में जो भी कठिनाई हो रही है सभी की जिंदगी में, जो अभी चली जो कोरोना जो चल रहा है पिता प्रभु, उसमें सभी को चंगाई से अच्छे जिंदगी में अच्छे कार्य हुए पिता प्रभु। पिता प्रभु, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर।